So, hello students, good morning. আজি আমাৰ নাম্বাৰ সিস্টেমৰ ক্লাছ নম্বৰ 3 ঠিক আছে। সো লাষ্ট ক্লাছত আমাৰ বেসিক্যালি নাম্বাৰ লৈ ৰিয়েল নাম্বাৰ কি হয়, ন্যাচাৰাল নাম্বাৰ, হোল নাম্বাৰ গোটেইখিনি ডিসকাস কৰা হ'ল। ইয়াৰ পিছত সেকেন্ড পাৰ্টত কি ডিসকাস কৰা হৈছিল, স্কোয়াৰ, ইয়েস স্কোয়াৰ ৰুট, কিউব ৰুট কেনেকৈ ওলোৱা হয়। ওকে, সো আজি লাষ্ট দুটা ক্লাছৰ লগত আজিৰ ক্লাছৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, মানে এনেকৈ নহয় যে লাষ্ট দুটা ক্লাছত যি বস্তু শিকিছো सेम বস্তু ইয়াতে कंटिन्यू होगा, এনেকে নাই। যেটা यूनिक क्लास है और नॉर्मली नंबर सिस्टम का ऐसा ही होगा, मतलब हर एक क्लास में एक एक टॉपिक हम लोग खत्म करते हुए जाएंगे, तो उसमें आपको बेसिक नॉलेज से आपका काम चल जाएगा। ओके, सो আজি দুটা চাৰিটামান টপিক। ফাৰ্ষ্ট অফ অল যেনেকৈ লাষ্ট ক্লাছত আমি যদি আমাৰ যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট যিটো ক্লাছ আছিল আমাৰ, তাতে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ চাপ্টাৰত কি কি টপিক ডিছকাছ কৰিম। সো তাতে এটা টপিক আছিল, যদি আপোনালোকৰ মনত আছে, ইউনিট ডিজিট বুলি, है ना। तो यूनिट डिजिट जो टॉपिक है ये हम सेपरेट के डिस्कस करें आपको, माने ये टॉपिक थोड़ा वास्ट टॉपिक है, ऐसा नहीं कि एक बार में इसको खत्म करेंगे, लेकिन यूनिट डिजिट का थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग को आगे का क्लासेस में जरूरत पड़ेगा। सो यूनिट डिजिट अलग बेसिक बस्तुखिनि अलग आमी डिस्कस करें, डिस्कस करार पिছত नेक्स्ट आमार रिमाइंडार थियोरेम और बेलेग बेलेग बस्तु আছে এটা আমি ডিসকাস করিম আকৌ, ঠিক আছে। সো ইউনিট ডিজিট কথাটো মানে কি হয়, ইউনিট ডিজিট কোৱা যায় বা লাস্ট ডিজিটও ক'ব পাৰো। লাস্ট ডিজিট যেনেকৈ সাপোজ মই আপোনাক ক'লো, तो सपोज এটা নম্বৰ মই দিলো আপোনাক যে 2 3 5 4 6 এটা একটা নম্বৰ হয়। সো এই নম্বৰত ইউনিট ডিজিট কোনটো হ'ব বা লাস্ট ডিজিট কোনটো কাক কোৱা হ'ব। ইয়াতে টোটাল 5টা ডিজিট আছে, 2 3 5 4 6। ইয়াতে ইউনিট ডিজিট বা লাস্ট ডিজিট মানে আপোনাৰ 6 ইজ দ্য লাস্ট ডিজিট বা ইউনিট ডিজিট। ইউনিট ডিজিট মানে একক স্থান। ইয়াতে বাৰু এটা টেন্স, এটো 100 প্লেস, এটো 1000 প্লেস, এটো 10000 প্লেস। সো ইউনিট ডিজিট বা লাস্ট ডিজিট যদি কোৱা হয় আপোনাৰ 6 होगा, है ना। अभी मान लेते हैं, अब ऑब्वियसली क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि एक नंबर देके आपको ये नहीं पूछेगा बोले यूनिट डिजिट क्या है, तो संभव ही नहीं है। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दे रहा है, सपोज 5 2 3 प्लस 6 1 7 प्लस 2 3 4। এটা কিবা ক্যালকুলেশন করে কিবা একটা आंसर ওলাব আৰু। সো আমাক ইয়াতে ওলাব দিলে ইউনিট ডিজিট কি হ'ব, হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট ডিজিট। আপনাকে ইয়াতে ইউনিট ডিজিট ওলাব দিলে, ইউডি ইউনিট ডিজিট ওলাব দিলে। সো ইউনিট ডিজিট ওলোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ গোটেইখিনি প্লাস কৰাৰ বা গোটেইখিনি যোগ বা সামেশন কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনি খালি লাস্ট ডিজিট কেইটাত খালি লক্ষ্য কৰক, 3 আছে ইয়াতে, ইয়াতে 7 আছে, ইয়াতে 4 আছে। আপুনি অকল এই কেইটা ডিজিটে প্লাস কৰক, গোটেইখিনি প্লাস কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সো 3 + 7 কৰিলে কিমান হ'ব আপোনাৰ 10, 10 + 4 যদি কৰে কিমান হ'ব আপোনাৰ 14। কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 14। এটা 14 নালাগে বড়, আপোনাক লাগে লাস্ট ডিজিট মানে আপোনাৰ 4। যদি আপোনাৰ এইটো দিয়া থাকে, এই এটা এক্সপ্ৰেশন এনেকে দিয়া থাকে, আৰু আপোনাক যে ওলাব দিয়ে হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট ডিজিট বা হোয়াট ইজ দ্য লাস্ট ডিজিট, आंसर হ'ব 4। रीजन কি লাস্ট ডিজিট কেটা প্লাস কৰিলো, যেটো आंसर ওলাব ইয়াৰ পিছত লাস্ট ডিজিটটো আপোনাৰ आंसर হ'ব আপোনাৰ। क्लियर है ना। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं यही नंबर लिखता हूं फिर से 5 2 3 6 1 7 2 3 4 আৰু আপোনাক ওলাব দিলে ইউনিট ডিজিট। ইয়াতে আছিল প্লাস, ইয়াতে হৈ গল আপোনাৰ পূৰণ, ইনটু হৈ গল। আপুনি কি কৰিব, প্ৰসেস সেম, লাস্ট ডিজিট লাস্ট ডিজিট লাস্ট ডিজিট। এটা চাব 3 7 যা 21, 21 না আমার দুটা ডিজিট নালাগে, বড় আমাকে অকল এটা ডিজিট লাগে, মানে আমি 1 বুলি কনসিডার কৰিলো। 21 মানে 2 থাকিল 21, 2 বাদ দিয়ক, আপনি 1 থাকিল অকল। এটা 1 এর লগত আপনি 4 মাল্টিপ্লাই কৰক, 4, so unit digit will be 4 again। क्लियर। तो ऐसे आपका यूनिट डिजिट निकल जाएगा। यहाँ तक ठीक है बात। ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये सिर्फ थोड़ा जानकारी के लिए कि अगर आपका ऐसा रहे तो हम लोग ऐसे बहुत इजीली निकाल पाएंगे। क्लियर है। बाद में फोटो ले लीजिएगा, नहीं तो बाद में तो हम लोग एक एक करके पूरा रखेंगे, तो एक बार याद करके बाद में फोटो ले लीजिएगा। ओके, सिमिलरली अपने वो क्वेश्चन যদি আপনার क्वेश्चन दिया থাকে यूनिट डिजिट ওলাব দিলে आपको, ठीक है, आपका क्वेश्चन हमेशा सेम रहेगा, फाइंड द यूनिट डिजिट। क्वेश्चन सेम रहेगा, फाइंड द यूनिट डिजिट। अपने वो क्वेश्चन आंसर যে सपोज আপনাকে দেয়া হল 2 3 4 into 6 2 3 into 7 0 5। फाइंड द यूनिट डिजिट। आंसर क्वेश्चन सोनकाले विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। हाँ, पेन पेपर बिना टच के आंसर बताइए। व्हाट इज द यूनिट डिजिट 8 0 4 3 5 4 3 जा 12 12 नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 2 चाहिए। और इधर 5, 2 into 5 करेंगे तो
10 माने लास्ट की पाले अपनी 0। ओके, तो ऐसे अभी निकल जाएगा। ओके, अभी आप एक चीज देखेंगे 5 इंटू एनी ऑड नंबर, ऑड नंबर माने बेजोर সংখ্যা 1 3 5 7 9, 5 इंटू एनी ऑड नंबर अपनी लास्ट सदाय 5 पाबो, एंड 5 इंटू एनी इवेन नंबर মানে জোর সংখ্যা 0 2 4 6 8 যদি আপনি পূরণ করেন আপনি কি পাবো লাস্টত 0। क्रॉस चेक करके देख सकते हैं ऑड नंबर 1 3 5 7, 5 1 इज 5, 5 3 इज 15 लास्ट 5, 5 5 इज 25 लास्ट 5, 5 7 इज 35 लास्ट 5, 5 9 इज 45 लास्ट 5। ऑड नंबर লগত যদি 5 পূরণ করা হয় লাস্টত আমি সদায় কি পাম 5। ठीक है, दिस इज यूनिट डिजिट, दिस इज यूनिट डिजिट, दिस इज यूनिट डिजिट। बट যদি কোনো ইভেন নাম্বার জোর সংখ্যা 0 2 4 আপনি 5 into 0 0, 5 2 যা 10 লাস্টত 0, 5 4 যা 20 লাস্টত 0, 5 6 যা 30 লাস্টত 0, 5 8 যা 40 লাস্টত 0। সো ইভেন নাম্বার লগত 5 মাল্টিপ্লাই কৰিলে লাস্টত সদায় 0 আহিব, আৰু অড নাম্বার লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে লাস্টত সদায় 5 আহিব। क्लियर? अगर ये समझ में आ गया तो मुझे बताइए 8 7 5 into 64, what is the unit digit? 0, because this is 5 and this is an even number, এটা একটা জোড় সংখ্যা হয় even number, যদি পূরণ করা হয় 5 into 4 obviously 20, আপনি এনেকে কব 5 এটা even number, so even number में लास्ट 0 आहा तो खटांग आरो 0 ही आहिबो। क्लियर? सो 5 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे आपका 5। क्लियर है? ओके, अभी आप एक चीज देखेंगे, इसके साथ में और एक चीज भी बता देता हूं, हालांकि ये भी एक अलग टॉपिक है जो मैं अभी बताऊंगा, ये भी एक अलग टॉपिक है, हम लोग इसको सेपरेटली बहुत विस्तार से बहुत डिटेल्स में करेंगे, लेकिन थोड़ा आपको जानकारी के लिए मैं ये बता देता हूं बिकॉज आगे चल के इसको थोड़ा यूज होगा। मैं आपको बोल रहा हूं, मान लेता हूं 10 to the power 5, 10 to the power 5, আপুনি খালি মোক এইটো কক লাস্টত আপোনাৰ आंसर কি হয় নহয় মই গম না পাব আৰু আপুনি খালি মোক কক লাস্টত কেইটা 0 থাকিব, आंसर जो भी होगा लास्ट में कितना 0 आएगा, एंडिंग में एंड में कितना 0 आएगा 5 0 आएगा। आप इसको करेंगे तो क्या करेंगे बेसिकली 10 into 10 into 10 into 10 into 10, 1 2 3 4 5, तो 5 0 आपका आएगा। कैसे पता चला सर? देखिए इधर 1 0 था, इधर 5 है तो 1 इधर कितना 0 है 1 0 है, इधर कितना पावर है 5 है, 1 into 5 5 0। सिमिलरली मैं अगर मैं आपको बोलूं 2 3 0 टू दी पावर 9, लास्ट 0 केटा है वो 9, बिकॉज ये 1 है, इसमें आपका 9 zeros आएगा। बहुत आसान है ये, 9 zeros आएगा। ओके, सो अभी मैं आपको बोलता हूं, मान लेता हूं 2 2 0 0 टू दी पावर 5, अभी लास्ट में कितना 0, एक सेकेंड ये कर देता हूं 2 3 0 0 टू दी पावर 5, लास्ट में कितना 0 आएगा 10 0 आएगा, बिकॉज इसमें आपका 2 0 है, तो हर बार 2 2 2 ऐसे 5 बार, तो 2 2 करके 5 बार आएगा, 2 into 5 2 into 5 10 zeros। आगे चल के एक टॉपिक करेंगे हम लोग जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोस, जो आपका टॉपिक लिस्ट में लिखा हुआ था, आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास जो कल किए थे उसमें देखिए नंबर ऑफ जीरोस बोल के एक टॉपिक लिखा गया था, जिसको हम लोग अलग से डिटेल में करेंगे, लेकिन कुछ काम से अभी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बोल के रख रहा हूं थोड़ा थोड़ा। सो अपनी लास्टत केटा 0 আছে আৰু পাৱাৰত কি আছে এটোৰ পৰা আপুনি ইজিলি ক'ব পাৰে লাস্টত কেটা 0 আহিব। ইয়াতে এটা 0 টু দি পাৱাৰ 5, সো 1 into 5 5টা 0, ইয়াতে দুটা 0 আছে মানে 2, ইয়াতে হল 5, तो 2 into 5 10টা 0 হবে। समझे? अभी मान लेते हैं सवाल अगर ऐसा तो नहीं आता है, मान लेते हैं मैं आपको सवाल आपको देता हूं कि 25 into 32 into 60, इसमें कितना 0 आए, इसमें और भी कुछ बोल देता हूं, मान लेता हूं 45। आपका बस सवाल यह है कि इसको सॉल्व करने के बाद एक गोटेखिनि वैल्यू उलोৱাৰ পিছত আমাৰ লাস্টত কেটা 0 আহিব। ठीक है, क्वेश्चन इज
ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ জিরোজ। আপোনাক এনেকে এটা কিবা এক্সপ্रेशन दिया আছে, আপোনাক নাম্বার অফ জিरो ওলাব দিলে। तो एक चीज बहुत सिंपल सा बात है, और आप लोग अगर अपने भाई या कोई भी बहन कोई भी है छोटे बच्चे, उनको आप नॉर्मली ये चीज समझाते होंगे कि आपका मल्टीप्लाई जब होता है যেতিয়া পূরণ হবো, तो জিরো আহার দুটাই অকল চান্স আছে। জিরো आप दो ही प्रोसेस से ला सकते हैं। क्या प्रोसेस है कि अगर आपका ऑलरेडी जीरो है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लेता हूं मैं आपको बोल रहा हूं 33 इंटू 100, तो लास्ट में तो ऑब्वियसली बात है 2 जीरो तो आएगा ही आएगा। इसमें अगर 2 रहता तो ये आपका 66 हो जाता, 2 जीरो आता, ये 2 जीरो तो रहेगा ही रहेगा, তাতে কোনো সন্দেহ নাই, দুটা জিরো তো অটোমেটিকলি আহিব বাৰু। সো ইয়াতে আপোনাৰ এটা জিরো আছে, সো এটা জিরো নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ লাষ্টত আহিব, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। বাট इसका मतलब यह है कि 10, 100, 1000 है ना, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ যেতিয়া আপুনি মাল্টিপ্লাই কৰিব, তাতে গোটেই কেইটা জিরো লাষ্টত আহি যাব, তাতে কোনো প্ৰবলেম নাই। আৰু এটা সিচুৱেশন হল, যদি আপুনি 2 আৰু 5 এই কম্বিনেশন যদি এটা বনাব পাৰে, 2 আৰু 5 ৰ যদি এটা কম্বিনেশন বনাব পাৰে, 2 into 5 মানে 10, সো এটা 2 আৰু 5 ৰ এটা পেয়াৰ, 2 और 5 और एटा पेयर अपना एटा जीरो दिवो, समझे कि नहीं। 2 और 5 का अगर आप एक पेयर कहीं से बना सकते हैं, 2 into 5 कितना होता है, 10 होता है, और 10 माने कितना जीरो होगा, एक जीरो होगा। अगर ये बात समझे तो इसमें थोड़ा देखेंगे। 25 को क्या मैं नहीं लिख सकता 5 into 5, 32 को क्या मैं नहीं लिख सकता, मान लेता हूं 2 into 2 into 2 into 2 into 2, देखिए 32 होगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 3, 6 into डायरेक्टली 10 लिख दिया, 6 into 10 60। 45 को लिख सकता हूं 5 into 9, या 9 को आप चाहे तो 3 into 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देखेंगे आपका जीरो कैसे आएगा। जीरो आएगा नंबर ऑफ 10, जितना 10 है उतना जीरो है। इसमें 10 आपका कितना आ रहा है, एटा नंबर ऑफ 10, নাম্বার অফ 10 কেটা আছে আপনার 1, সো আপনি লাস্টত নিশ্চয়কৈ এটা জিরো তো পাবই। আপনি যেতিয়া গোটেই কেটা পূরণ করবে জিরো তো লাস্টত যাবই, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। এতিয়া আপনি চাব পেয়ার 2 আৰু 5 ৰ পেয়ার কেটা আছে, 2 আৰু 5 ৰ জোড় কেটা আছে চাব। এই এটা 5, এই এটা 2, এই এটা জোড় হৈ গল, এই এটা 5, এই এটা 2 আৰু এটা পেয়ার হৈ গল, এই এটা 5 আছে, এই এটা 2 আছে আৰু এটা পেয়ার হৈ গল। আৰু আমি 2 আৰু 5 ৰ পেয়ার পাম নেকি, देखिए तो है क्या, नहीं है। तो एक पेयर आपको एक जीरो देगा, 2 और 5 का एक पेयर आपको एक जीरो देगा, तो ऑब्वियसली ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, टोटल 3 पेयर हो गया। तो 3 पेयर आपको कितना जीरो देगा, 3 जीरो देगा। इधर आपका एक जीरो था, इधर आपका 3 जीरो है, टोटल आपको कितना जीरो मिलेगा इसमें। अच्छा, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर में जैसे भी करके आपको देखिएगा लास्ट में आपको 4 जीरो मिलेगा। लॉजिक समझे क्या बोले। आपको अगर डायरेक्टली 10, 100, 1000 কিবা এটা পূরণ করা অবস্থা যদি আপনি পায়, তাতে আপনি 10 আছে মানে এটা জিরো, যদি 100 থাকে, সাপোজ ইয়াতে 600 আছে, সাপোজ 600 আছে, তো ऑब्वियसली আপনি ইয়াতে ইনটু 100 দিব, তাহলে লগে লগে দুটা জিরো পাই যাব আপনি, ঠিক है। सो 10 आपको एक जीरो देगा, 100 আপনার দুটা জিরো দিব, 1000 আপনার তিনটা জিরো দিব, আৰু লগে লগে 2 আৰু 5, 2 আৰু 5 ৰ যদি এটা পেয়ার बनाबो पारे, আপনি এটা জিরো পাবো। ऐसे आप 2 और 5 का जितना पेयर बनाएंगे उतना आपको जीरो मिलेगा। तो 2 और 5 का 3 पेयर, 3 जीरो, नंबर ऑफ 10 एक है, एक जीरो, टोटल आपका हो गया 4 जीरो। समझे, ओके ठीक। ऑब्वियसली नंबर ऑफ जीरोस और बहुत किबा किबि कब লগা আছে, তো যেতিয়া नंबर ऑफ जीरोस আমি বহুত ডিটেইলছত কৰিম, তেতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম। ফৰ টাইম বিং আমাৰ অকল ইউনিট ডিজিটৰ বাবে অলপ প্ৰয়োজন হ'ব, এইকন অলপ শিকি লৈছো। আৰু এতিয়া আপুনি মোক কওকচোন, সাপোজ আপোনাক দিয়া আছে 1370 টু দি পাৱাৰ 234, what is the unit digit, what is the unit digit, 0। লাস্টত যদি 0 থাকে, লাস্টত যদি 0 থাকে, আপনি পাওয়ার যি ইচ্ছা দিয়ক, যিমান সৰুৱে দিয়ক, যিমান ডাঙৰে পাওয়ার দিয়ক, লাস্টত যদি 0 থাকে, আপনি লাস্টত সদায় মানে এটো ক্যালকুলেশন করার পিছত লাস্টত আপনি সদায় 0 পাবই, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। करेक्ट और नॉट। लास्ट में अगर जीरो रहेगा, पावर करेंगे तो आपको लास्ट में आंसर में जो होगा उसमें आपको जीरो मिलना कंफर्म है। सिमिलरली मैं अगर आपको बोलूं 2341 टू दी पावर 617,
यूनिट डिजिट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट? 1 1ৰ ওপৰত আমি যি ইচ্ছা আপুনি খালি ইউনিট ডিজিট ওলোৱাৰ কাৰণে খালি ইউনিট ডিজিটৰ ওপৰতে ফোকাস কৰক না। আপোনাক যদি ইউনিট ডিজিট ওলাব যেহেতু দিছো মই, তো আপোনাৰ বাকি নম্বৰ কেইটা চাওয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, আপুনি খালি ইউনিট ডিজিটটো চাব। খালি ইউনিট ডিজিট কি আছে? 0 আছে। 0ৰ ওপৰত আপুনি যি ইচ্ছা পাৱাৰ দিয়ক, যিমান ডাঙৰ পাৱাৰ দিয়ক, যিমান সৰু পাৱাৰ দিয়ক, মেটাৰে নকৰে। 0 টু দি পাৱাৰ সামথিং 0, 1 টু দি পাৱাৰ এনিথিং, ডাঙৰে হোক সৰুৱে হোক, কোনো মেটাৰে নকৰে, ইভেন হোক অড হোক, কোনো মেটাৰ নকৰে। 1 টু দি পাৱাৰ এনিথিং সদায় 1। ক্লিয়াৰ? নেক্সট 3 4 5 টু দি পাৱাৰ 6 1 7 8, यूनिट डिजिट, हाँ यूनिट डिजिट 0 ना। अब खुद क्रॉस चेक कीजिए, 5 टू द पावर 1 क्या होगा? 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125, 5 टू द पावर 4 625। लास्ट में आपका 5 आना निश्चित है। 5 का पावर आप कुछ भी बैठाइए, 5 टू द पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, लास्ट ऑफ 5, 5 क्यूब 125, लास्ट ऑफ 5, 5 टू द पावर 4 625, লাষ্ট 5। আপুনি 5ৰ লগত যেতিয়া 5 মাল্টিপ্লাই কৰিব, বেসিক্যালি কি হয়, 5 কিউবৰ পৰা 5 টু দি পাৱাৰ 4 আমি কেনেকৈ পালো? 5 টু দি পাৱাৰ 4 মানে কি, 5 কিউবৰ যেটো ভ্যালু আছিল তাৰ লগত আৰু এটা 5 মাল্টিপ্লাই। সো 5 কিউব কিমান আছিল আপোনাৰ? 125। তাৰ লগত আপুনি কি পূৰণ দিলে? 5। সো 5 5 যে সদায় তো 25 আহিবই। সো লাষ্টত 5 আহাটো কনফাৰ্ম। সো 5 টু দি পাৱাৰ এনিথিং, 5 টু দি পাৱাৰ এনিথিং, ইউনিট ডিজিট সদায় 5। ক্লিয়াৰ? সিমিলারলি যদি আপোনাক কোৱা হয় 2 3 6 টু দি পাৱাৰ 1 2 3 4, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट या तो यूनिट डिजिट की আছে আপনার 6। अभी 6 का पावर आप कुछ भी सोचिए, 6 टू द पावर 1 6, 6 स्क्वायर 36, लास्ट ऑफ 6, 6 क्यूब 216, लास्ट ऑफ 6। तो 6 का पावर आप कुछ भी लिखिए, इधर ऑड लिखिए, इवन नंबर लिखिए, कुछ भी लिखिए, आपको हमेशा आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। क्लियर है? सो इससे आपको यह पता चल रहा है, इससे आपको यह पता चल रहा है यूनिट डिजिटৰ যেতিয়া কথা হ'ব, যেতিয়া यूनिट डिजिटৰ যেতিয়া আমি ডিসকাশন কৰিম, যেতিয়া আমি यूनिट डिजिटৰ ডিসকাশন কৰিম, এক সেকেন্ড, यूनिट डिजिट যদি আপোনাৰ 0 থাকে, 1 থাকে, 5 থাকে আৰু 6 থাকে, দেন টু দি পাৱাৰ আপুনি যি ইচ্ছা পাৱাৰ দিয়ক, यूनिट डिजिट আপোনাৰ यूनिट डिजिट सेम আহিব, सेम यूनिट डिजिट will be same। 0 1 5 6, 0 1 5 6 এয়াৰ পাৱাৰ আপুনি যি ইচ্ছা দিয়ক, আপুনি यूनिट डिजिट सेम পাব। 0 হলে 0, 1 হলে 1, 2 5 হলে 5, 6 হলে 6। क्लियर है ये बात? ठीक है? ओके, এতিয়া চাব, আপোনাক যদি কোৱা হয়, চাব 4 টু দি পাৱাৰ ইভেন নাম্বাৰ, यूनिट डिजिट কি হ'ব আপোনাৰ? और 4 टू दी पावर ऑड नंबर। देखिए इसमें एक बहुत ही नॉर्मल सा बात है, और मैं ये आगे भी आपको ये वाला चीज बार बार हर एक चैप्टर में शायद ये चीज मैं बोलूंगा। मैथ्स में ना जितना हो सके रट्टा कम मारेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम उसको पूरा बिना कुछ समझे याद रखेंगे, तब क्या होगा, दिक्कत क्या होगा, अभी जैसे आप लोग नया नया शुरू किए हैं तो आगे चल के आप देखेंगे ना इतना कुछ आपको याद नहीं रहेगा, किसी को याद नहीं रहेगा, ना मुझे याद रहेगा ना आपको याद रहेगा। इतना ज्यादा मतलब ज्यादा याद करने से, ज्यादा रट्टा मारने से बिना समझे वो भूलने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। और ज्यादातर एग्जाम में तो भूलना ही है, एग्जाम में टेंशन रहेगा, प्रेशर रहेगा, तो उसमें बहुत कुछ जाना चीज भी आदमी भूल कर देता है, तो उसमें तो दिक्कत। तो आप ना जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा, मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला 5 टू द पावर ऑड, 5 इंटू ऑड, 5 इंटू इवन, उसके बाद में बोला 0 1 5 6, याद रखेंगे सेम होगा। अभी मैं आपको दूसरा कुछ फॉर्मूला दे रहा हूं, ये सब इतना कुछ फॉर्मूला आपको एक बार में याद रह जाएगा, ये ह्यूमनली तो पॉसिबल है नहीं। तो जब भी आपको कुछ डाउट होगा कि क्या होगा नहीं होगा, हमेशा अपने आपको एक एग्जांपल देके समझ लीजिए क्या होगा। जैसा कि मान लेता हूं 4 टू द पावर इवन, आपको याद नहीं कि लास्ट में क्या आता है, लेकिन आपको ये तो पता है 2 एक इवन नंबर है, तो 4 स्क्वायर कितना हो रहा है
16 हो रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, माने 4 टू द पावर इवन नंबर, लास्ट में आपका 6 आएगा। ऑड नंबर 3 मान लीजिए, 4 क्यूब कितना होता है, 4 क्यूब 64, लास्ट किया है 4 से आते 4 है, हो गया खत्म, ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अभी 4 और पावर जी कोनो इवन नंबर हो, सपोज मैं अपना बोलूं 2 3 4 टू दी पावर 1 2 2 4 3 6, ইয়াতে 4 আছে, ইয়াতে 6 আছে, মানে এটা ইভেন নাম্বার হয়। সো 4 টু দি পাওয়ার ইভেন নাম্বার, হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট ডিজিট 6, খতম। ইউনিট ডিজিট আপনার হবে 6। সিমিলারলি যদি আপনার কোয়া হয় 2 3 4 আকৌ সেম নম্বরে দিলু, আর ইয়াতে মই চেঞ্জ কৰি আপোনাক দিলু, সাপোজ ধৰক এনিথিং মানে 3 2 1 5 7, ইউনিট ডিজিট 4, বিকজ ইয়াতে আকৌ 4 আছে, দিস ইজ এন অড নাম্বার, সো 4 টু দি পাওয়ার অড নাম্বার, आंसर इज 4। क्लियर? ठीक है, तो 4 आपका हो गया। हाँ 6 टू दी पावर ये तो किए ना ऑलरेडी, 6 टू दी पावर एनीथिंग, हाँ 6 टू दी पावर एनीथिंग सेम होगा। ओके ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, ठीक है, এটা क्वेश्चन आंसर दियो सुन, अपना फाइंड द यूनिट डिजिट। हाँ क्वेश्चन वही रहेगा, फाइंड द यूनिट डिजिट, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट। अपना यूनिट डिजिट ওলাব দিলে, ফাইন্ড দ্য ইউনিট ডিজিট 19342020 ইনটু 606 টু দি পাওয়ার 100 ইনটু আপনাক দিলে 219132। ऑब्वियसली ये वाला चीज थोड़ा मैं अभी बिना बोले में दिया हूं, देखता हूं कर पाते कि नहीं कर पाते। इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। ক্যালকুলেশন করার পর আপনাকে ইউনিট ডিজিট ওলাব দিলে কি করব আপনি, देखिए ইয়াতে আপনার কি আছে 4 আর এটা একটা ইভেন নাম্বার, সো 4 টু দি পাওয়ার ইভেন নাম্বার ইউনিট ডিজিট 6, 4 না 6, 4 টু দি পাওয়ার ইভেন নাম্বার ইউনিট ডিজিট 6, 4 স্কয়ার 16, 2 ইভেন নাম্বার 16 6, তো 6 টু দি পাওয়ার এনিথিং ইউনিট ডিজিট 6, বাকি থাকি গেল ইয়াতে, ইয়াতে লাস্ট কি আছে আপনার 9, and this is an even number না odd number, even number। okay इतने सब सब 9 to the power odd number unit digit, 9 to the power even number unit digit। पता नहीं मुझे फॉर्मूला पता नहीं, भूल गए, मान लेते हैं, कोई बात नहीं। ऑड नंबर 1 इज अ वेरी गुड एग्जांपल, 1 এটা ऑड नंबर হয়, 9 टू द पावर 1, 9 स्क्वायर 2 इवन ना ऑड, इवन 9 स्क्वायर 81, इवन होगा 81, लास्ट ऑफ 1, 9 टू द पावर 1, 1 इज अ ऑड नंबर, 9 टू द पावर 1 9, हो गया फॉर्मूला। क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करके देखिए, 9 टू द पावर 3 करके देखिए 729, लास्ट में 9 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अभी 9 में फॉर्मूला इवन ना ऑड, इवन, सो 9 टू द पावर इवन 1, 6 6 जा 36, 36 into 1 36, लास्ट কি আহিব আপনার 6, 6, तो आपका यूनिट डिजिट इज 6, दिस इज द यूनिट डिजिट। क्लियर? एंड दिस इज अनदर फॉर्मूला। मैं बारे बारे কৈ আছো, फॉर्मूला मैं दिया तो दिया आছো বাৰু, ऑब्वियसली আপোনালোকে নোট डाउन কৰক, বাট
एज ए टीचर मोर सजेशन एटू केতিয়াও নহয় যে আপুনি এটু মুখস্থ কৰক। মুখস্থ কৰা বস্তু कभी भी आपको धोखा दे सकता है, समझने वाला चीज कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है, ओके। अभी एक चीज देखते हैं, ये सब हो गया। ओके, এতিয়া আপুনি স্পেশাল কেইটামান নাম্বার দিলো 2 3 7 and 8। स्पेशल नंबर क्यों बोलो? स्पेशल नंबर बड़े साइटा स्पेशल नंबर है आसिल, ये 4 भी आपका स्पेशल नंबर था 0 1 5 6, इसलिए स्पेशल है बिकॉज ये चारों डिजिट आपको डायरेक्टली यूनिट डिजिट दे देता है। 0 1 5 6 যদি আপনার লাস্ট ডিজিট হয় তার পাওয়ারত আপনি জি ইচ্ছা দিয়ক আপনি ইউনিট ডিজিট সেম পাবো। সো দিস 4 আর স্পেশাল নাম্বারস। সিমিলারলি এই 2 3 7 8 ইজ অলসো আ স্পেশাল আর সাম স্পেশাল নাম্বারস। রিজন কি সব অলপ মই কি কৈ আছো ইয়াতে আপোনাক মই কলো 2 টু দি পাওয়ার 1 কিমান হ'ব? 2 to the power 1 2, 2 स्क्वायर 4। सिर्फ मुझे लास्ट डिजिट चाहिए होगा। हाँ, 2 क्यूब 8, 2 to the power 4 16, लास्ट 6, 2 4 8 6 हो गया यहां तक। अभी देखेंगे 2 to the power 5 कितना होगा? 32, लास्ट 2, 2 to the power 6 64, लास्ट 4, 2 to the power 7 128, लास्ट 8, 2 to the power 8 256, लास्ट 6। देखेंगे पावर 1 2 3 4 जो पावर है उसमें जो आपका लास्ट डिजिट मिल रहा है फिर से वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 जो आपका पावर था, जो आपको लास्ट डिजिट मिला था, वो फिर से 5 नंबर से फिर से रिपीट करना शुरू हो गया 2 4 8 6। फिर से आप जाएंगे 2 to the power 9 कीजिए, 2 to the power 10 कीजिए, 2 to the power 11 कीजिए, 2 to the power 12 कीजिए, 2 4 8 6, फिर से 2 4 8 6, 2 4 8 6। मतलब आपका इधर का पावर, हर पावर को अगर आप 4 4 करके बढ़ाते जाएंगे, देखेंगे इधर पावर कितना है? ये 3, इसको +4 कीजिए, कितना होगा? 7, 2 to the power 3 लास्ट डिजिट যদি 8 হয়, 2 to the power 7 লাস্ট ডিজিট 8, পাওয়ার যদি +4 করে আপনি সদায় আপনি 8 8 8 8 ইয়াতে পাই থাকিব। 3 এর পাওয়ার, 7 এর পাওয়ার, 11 এর পাওয়ার, 15 এর পাওয়ার, 19 এর পাওয়ার, 23 এর পাওয়ার +4 +4 +4 +4 8 8 8 8 8। সিমিলারলি যদি আপনি ইয়াতে করে 2 2 স্কয়ার 4, 2 এর লগত +4 করক আপনি 6, এই যে 6 লাস্টত 4, 2 +4 6 +4 10 +4 14 +4 18, लास्ट डिजिट 4। समझे? तो आपका पावर 4 4 करके बढ़ाते जाइए और आपका यूनिट डिजिट सेम ही मिलेगा हमेशा। इसको बोला जाता है साइक्लिसिटी। इस चीज को बोला जाता है साइक्लिसिटी। और 2 का जो साइक्लिसिटी है दैट इज 4। 2 साइक्लिसिटी 4, कारण कि 2 पावर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 खुदा रिपीट करे। ठीक है, सेम थिंग अगर आप देखेंगे 3 के साथ भी होगा, सेम सिचुएशन आप देखेंगे 3 के साथ भी होगा, 2 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा, 4 7 के साथ भी होगा और 8 के साथ भी होगा। ये चारों का साइक्लिसिटी आपका क्या है? 4 है। ये चारों का साइक्लिसिटी क्या है आपका? 4 है। अब 3 का पावर करके देखिए, 3 का पावर अगर आपको ये है तो एक बार करके देख सकते हैं आप। 3 to the power 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, लास्ट 7, 3 to the power 4 81, 81 লাস্ট 8 দিলো, এতে আহক 3 to 4 হয়ে গেল, 3 to the power 5 243, 243 2 4 বাদ দিয়ক, লাস্ট 3 এই যে 3। সো পাওয়ার 1 পাওয়ার 5 9 13 17 +4 +4 +4 3 3 3 3, 3 স্কয়ার 9, 2 এর লগত +4 করক, 3 to the power 6 লাস্ট ডিজিট 9, 3 to the power 10 लास्ट डिजिट 9, 3 to the power 14 लास्ट डिजिट 9। क्लियर? या तो सेम? तो ज्यादा लोड हो रहा है क्या? ये कुछ नहीं, नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा इसका झमेला होगा। उतना आसान चीज से कैसे होगा, थोड़ा तो करना पड़ेगा। ठीक है, सो 3 to the power 5 अपने जो लास्ट डिजिट जो चाहे दैट विल बी 3। सो মনত রাখিব 2 3 7 8 2 মনত রাখিব 2 3 7 8 साइक्लिसिटी 4।
साइक्लिसिटी 4, साइक्लिसिटी 4, साइक्लिसिटी 4, माने साइक्लिसिटी 4 माने पावर, अगर आपको ये पहले तो 2-3 पावर सबको याद रहेगा, और आपको मैं पूछ दिया, मान लेता हूं इसका ऐसे में आपसे पूछता हूं, ऐसे में आपको पूछता हूं कि सपोज मैं अपना खोलो 2 to the power 49 into 3 to the power सपोज 48 ना, 48 नहीं देंगे, 48 में तो दूसरा कुछ बात है, 48 ना देके मैं आपको दे रहा हूं 44 ना, 46। फाइंड द यूनिट डिजिट। थोड़ा दिक्कत है, देखेंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 का साइक्लिसिटी कितना है, 3 का साइक्लिसिटी कितना है। सबसे पहले आप देखेंगे क्या वो नंबर जिसके ऊपर पावर है, पावर को गोली मारी, पावर तो आता जाता रहेगा, ये नंबर पे ज्यादा ध्यान दीजिए। नंबर कैसा है, 2 3 7 8 है साइक्लिसिटी 4। সাইক্লিসিটি যদি 4 হয়, আপনি ফার্স্ট কাম যেটো কৰিব এটো হল আপনি এই যে উপৰত যেটো পাৱাৰ আছে না 49, ইয়াতে 49 আছে না পাৱাৰ, ইয়াতে 46 আছে, 49 ক আপনি 4 দিয়ে डिवाइड करक। व्हाई? बिकॉज 2 का साइक्लिसिटी 4 है, तो मैं जब 4 से डिवाइड करूंगा इसका रिमाइंडर मुझे बताइए कितना होगा। रिमाइंडर व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 4 into 12 48, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर इज 1। सिमिलरली 46 4 से डिवाइड करेंगे, व्हाई? बिकॉज 3 पावर, 3 साइक्लिसिटी की मान 4, এখানে 46 হোক 4 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 4 into 11 44, রিমাইন্ডার 2। আপনি বাকি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ নম্বৰ লিখিব নালাগে, আপনি ডাইরেক্টলি এনেকে লিখি দিয়ক 2 to the power 49 ঠাইত আপনি লিখি দিয়ক 1, 3 to the power লিখি দিয়ক 2, अभी 2 to the power 1 2, 3 square 9, 9 2 जा 18, लास्ट डिजिट 8। दिस इज द यूनिट डिजिट। बुझता है ना, नहीं बुझता है? सिंपल बात यह है, आप खुद समझिए ना, ज्यादा समझने में दिक्कत होगा, छोड़िए, ऐसे सोचिए, पावर जो भी है साइक्लिसिटी, देखिए अभी तक हम लोग का ऐसे 4 4 8 नंबर मिला है। मैं इसको थोड़ा, अगर मैं आपको ये कर दूं, इजी कर दूं चीज को। हाँ, मुझे पहले बताइए, मैं इसको एक समरी कर देता हूं आपको, रुकिए। पहले मुझे आप बताइए, सेम कौन कौन नंबर और पावर सेम है? यूनिट डिजिट सेम, यूनिट डिजिट सेम कौन कौन नंबर कारण है? 0, सॉरी एक सेकंड, हाँ 0 1 5 6, ये सबका लेके आपको सोचना ही नहीं है। अगर आपका नंबर का लास्ट डिजिट इसमें से कोई एक है, पावर जी इच्छा दियक ताते कोनो असुविधा নাই, इवेन दियक অড দিয়ক ডাঙৰ এটা নম্বৰ দিয়ক কোনো অসুবিধা নাই। যদি আপনার লাস্ট ডিজিট যদি 0 1 5 6 এর ভিতর কোনো একটা নম্বর থাকে, আপনার ইউনিট ডিজিট সেম হবো, অসুবিধা নাই। নেক্সট আহক, যদি আপনার ইউনিট ডিজিট 2 থাকে, 3 থাকে, 7 থাকে, 8 থাকে, আপনার যে নম্বৰৰ মানে একটা নম্বর দিয়া হবো না, আপনার নম্বরটা দিয়া থাকিব, এনেকে একটা নম্বর দিয়া থাকিব। সাপোজ আপনাকে দিয়া থাকে এনেকে 2 3 2 টু দি পাওয়ার 6 0 5 এনেকে দিয়া থাকিল। सो ये यूनिट डिजिट की 2, ये वाला यूनिट डिजिट अगर आपका 2 3 7 8 होता है, ये वाला यूनिट 2 3 7 8 होता है, तो फर्स्ट स्टेप जो अपना करा प्रयोजन, दैट विल बी डिवाइड द पावर by 4 and select the remainder। যদি আপনার লাস্ট ডিজিট যদি 2 3 7 8 হয়, ফার্স্ট কাম যেটা আপনি করব, ডাঙৰ একটা পাওয়ার আপনাক দিয়া আছে, এটা আপনি 4 এ দি ডিভাইড কৰি দিয়ক। 4 এ দি ডিভাইড কৰি আপনি সৰু এটা রিমাইন্ডার পাবো।
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है। मैं एक बहुत बड़ा नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया, मेरा रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? नहीं, आंसर बताइए। मैं एक बहुत बड़ा नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया, उसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर्स सेकेंड सेम में आता है क्वेश्चन। खत्म। 1 2 3, इससे ये छोड़ के दूसरा कोई रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, बिकॉज जिससे आप डिवाइड करेंगे उससे बड़ा रिमाइंडर कैसे हो सकता है? तब तो खुद और एक बार डिवाइड चला जाएगा, तो आपका रिमाइंडर आएगा 1 2 3। सो जब आप एक बहुत बड़ा नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, आपको रिमाइंडर 1 2 3 या 0 मिल सकता है। अगर कुछ पूरा पूरी डिविजिबल हो जाएगा तो 0 मिलेगा, 0 वाला सिचुएशन अलग है, मैं बाद में बोल रहा हूं। लेकिन 1 2 3 आ सकता है, 1 2 3 आएगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिवाइड कर लिए, रिमाइंडर 1 आया, 1 पुट कर देंगे। डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 2 आया, 2 पुट कर देंगे। डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा, 3 पुट कर देंगे। एज सिंपल एज दिस। डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा पूरी डिविजिबल, क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे ना, तब 4 पुट करेंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूं, 4 से डिवाइड करेंगे, 2 आए, 3 आए, इधर पावर अपना ভ্যালু যদি ইউনিট ডিজিট 2 থাকে, 3 থাকে, 7 থাকে, 8 থাকে, আপনি পাওয়ার অফ 4 দিয়ে ডিভাইড কৰিব। ডিভাইড কৰাৰ পিছত আপুনি কি কি ভ্যালু পাব পাৰে? 1 2 3। যদি 1 2 3 যদি আহে, আপুনি ডাইৰেক্টলি ইয়াতে পাওয়ার অফ রিমাইন্ডারটো বহাই দিলে হল। যি রিমাইন্ডার আহে বহাই দিয়ক, কোনো টেনশন নাই। ইন কেস কমপ্লিটলি ডিভিজিবল, সাপোজ মই আপোনাক ক'লো ইয়াতে দিয়া আছে 44, ইয়াতে দিয়া আছে 44, 44 ক আপুনি 4 দিয়ে ডিভাইড কৰক, রিমাইন্ডার 0, बिकॉज कम्प्लीटली डिविजिबल। যদি रिमाइंडर 0 आहे তাতে আপনি ইয়াতে ইয়াতে 4 বহাবো, 4 0 নহয় 4 বহাবো ইয়াতে। समझे? ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अभी फिर से देखिए, 0 1 5 6 का हो गया। 0 1 5 6 का पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट यही रहेगा। इसका पावर, इसका ये सब डिजिट है, पावर कुछ भी रहे, सबसे पहला काम होगा पावर को डिवाइड कीजिए, पावर को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर को पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा। साथ में और क्या सीखे हम लोग और क्या सीखे कि 5 टू दी पावर অড যদি হয় কি হবে আপনার ইউনিট ডিজিট, আর 5 टू दी पावर इवन যদি হয় यूनिट डिजिट কি হবে? ऑलरेडी उसमें लिखा ही था 5, मैं फिर से लिख रहा हूं फिर से इसको। तो 5 का तो ऑलरेडी उसमें 5 इंटू ऑड इंटू इवेंट था ना, पावर में तो झमेला था ही नहीं, तो 5 तो उधर ऑलरेडी आ चुका था। और क्या किए थे? 4 का किए थे ना, 4 का। 4 इसमें तो नहीं है, 4 का करेंगे। 4 टू दी पावर ऑड एंड 4 टू दी पावर इवन, याद नहीं है तो देख लेंगे। 4 टू दी पावर 3, 4 क्यूब 64, लास्ट डिजिट 4, 4 स्क्वायर 16, लास्ट डिजिट 6। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। दिस इज अनदर फॉर्मूला। এটা এটা শিকিছিল, এটা আর 9, 9 এর কারণে কি শিকিছিল? 9 তো এটা 9 9 নাই, ওকে। 9 টু দি পাওয়ার অড আর 9 টু দি পাওয়ার ইভেন, ইউনিট ডিজিট। সো 9 টু দি পাওয়ার অড যদি করা হয় ইউনিট ডিজিট কি হবে? 9 টু দি পাওয়ার 1 9, 9 স্কয়ার 81, লাস্টত 1। এটা সাপোজ 0 এর পরা আপনি আহক 9 লগে, এটা তো আমার ডিজিট হয়, इसके बाहर तो कोई डिजिट ही नहीं है, 0 से 9 तक आना है। 0 हो गया सॉर्टेड, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9, सब आपका खत्म। ये छोड़ के कोई डिजिट है ही नहीं। अगर ये वाला स्लाइड आपका क्लियर हो जाएगा, आपका पावर वाला जो यूनिट डिजिट निकालना है, जो कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, आपका नहीं रोकेगा, ये आ जाना चाहिए। समझे कि नहीं? ঠিক। আপনি মোক এটা লাস্ট কোশ্চেনের অ্যান্সার দিয়ক, ইয়াৰ পিছত স্লাইড এই পার্টিকুলার পার্ট আমি শেষ কৰিম। ফাইন্ড দ্য ইউনিট ডিজিট। কোশ্চেন ইজ ফাইন্ড দ্য ইউনিট ডিজিট। কোশ্চেন ইজ फाइंड द यूनिट डिजिट। कंडीशन इज आंसर मुझे क्वेश्चन देने से 5 सेकंड के अंदर चाहिए होगा, 5 सेकंड। 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 88 इंटू 89,
फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। हाँ, जो कर रहे हो वो गलत है, इतना टाइम लग गया मतलब गलत है। आप लोग ये कर रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी शुरू करता है कहानी, नहीं चाहिए ना। अगर आप देख रहे हैं 1 से लेकर 9 तक है, मतलब 2 है और 5 है, 2 इंटू 5 कितना आएगा 10, लास्ट में एक जीरो आ गया। अभी एक पहाड़ भी ला दीजिए, उसके साथ जीरो मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा, यूनिट डिजिट जीरो है ना। आप पूरा मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा, 2 इंटू 5 জিরো আহি আছে, জিরো যদি আহে যদি বাকি কেটা মাল্টিপ্লাই যি ইচ্ছা করো জিরোর লগত মাল্টিপ্লাই করে জিরো হওয়াটো তো একদম কম্পালসারি হবই লাগিব, है कि नहीं। फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। ফাইন্ড দ্য ইউনিট ডিজিট, যদি আপনি এটা ওলাব পাৰে মোটামুটি মই গম পাম যে আপোনালোকে ঠিক ঠাককে বুজি পাইছে আৰু কথাখিনি। ফাইন্ড দ্য ইউনিট ডিজিট, ফাইন্ড দ্য ইউনিট ডিজিট। আপোনাক দিয়া হল 30 টু দি পাৱাৰ 298, वाह। सो यूनिट डिजिट इज 0। अभी इसमें सवाल थोड़ा चेंज करेंगे, एक्चुअली ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया था। क्वेश्चन में आया था फाइंड द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, माने कि लास्ट में तो जीरो होगा, लास्ट में कितना जीरो आएगा, लास्ट में कितना जीरो आएगा। इसको जब कैलकुलेशन अगर करना तो संभव नहीं है हम लोग को, अगर कर लेता हूं लास्ट में कितना जीरो आएगा, है 2 है। लास्ट केटा जीरो है वो 1 আছে 9 আছে 1 into 9 দুটা জিরো টু দি পাওয়ার 5 2 into 5 10, তো লাস্ট কেটা জিরো আহিব ইয়াতে, ইয়াতে আপনার লাস্ট কেটা জিরো আহিব আপনার 1, याते 1, याते 298, 1 into 298 298 आएगा। तो अभी मान लेता हूं मैं इधर एकदम वो पाथरघाट से जीरो लिखना शुरू किया हूं, इधर सब जीरो ही आ रहा है, उसके बाद तो एक नॉन जीरो डिजिट आएगा, वो डिजिट कौन सा होगा। ये कैसा क्वेश्चन हो गया। ফার্স্ট রাইট মোস্ট রাইট সাইডত ফার্স্ট নন জিরো ডিজিট, জিরো কেটা আপনি গোটেই কেটা জিরো দিয়ক 298 টা জিরো দিয়ার পিছত ফার্স্ট যেটো নন জিরো যেটো ডিজিट হব সেটো আপনি ইয়ার पर उलाबो दिसे। सब लॉजिक थोड़ा देखेंगे। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल का है। हाँ, एसएससी सीजीएल 2018। ये मत सोचिए कि सीजीएल में आया है तो एडीआरई में नहीं आएगा। ये तो देखिए, सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए ये इतना जीरो क्यों आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, 3 के लिए आ रहा है। मतलब देखिए 3 को 30 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 into 10 टू दी पावर 298, এটা মানে কি 3 to the power 298 into 10 to the power 298 है ना। सो ये जो इतना जो जीरो आया किसके लिए आया था, इसके लिए आया कि इसके लिए आया, इसके लिए आया होगा। तो क्या इसके लिए कभी जीरो आएगा। तो जितना जीरो आना था 298 आपका जीरो आया है, किस लिए आया है 10 to the power 298 के लिए आपका 298 जीरो आया है। अभी जो पहला जो नॉन जीरो जो डिजिट आएगा राइट साइड से वो तो इसके लिए आएगा। तो मैं अगर सिर्फ इसको गोली मारिए, इसके लिए तो जीरो की अगर क्वेश्चन आपका आए कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ইয়াৰ পৰা क्वेश्चन দিলে আপোনাৰ ইয়াতে नंबर ऑफ जीरोस কেটা आंसर হ'ব 298। কিহৰ কাৰণে জিরো আহিলে আপোনাৰ 10 ৰ কাৰণে আহিলে 10 to the power 298 298 টা জিরো।
এতিয়া আপোনাক মই কলো নাই মই জিৰ' নালাগে বাৰু মোৰ লাগে নন জিৰ' মানে জিৰ' কেইটা শেষ হোৱাৰ পিছত প্ৰথম নন জিৰ' যিটো ডিজিট এইটো কাৰ কাৰণে আহিব 3 ৰ কাৰণে আহিব তো বেसिकली मैं आपको जो को सब गोली मारी आप मुझे सिर्फ इसका यूनिट डिजिट निकाल दीजिए आप मुझे सिर्फ इसका यूनिट डिजिट निकालिए क्या वो आपका आंसर नहीं होगा ये चीज का यूनिट डिजिट जो होगा वही तो आपका आंसर है बिकॉज वही तो आपका खत्म होगा उसके बाद इसका जीरो शुरू होगा तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वही तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का है ना तो 3 टू द पावर 298 आपने की করে বলতে 3 এর পাওয়ার আছে फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय वेरी गुड सो 298 डिवाइड बाय 4 आप करके देखेंगे 296 आपका रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर आपका आएगा 2 रिमाइंडर विल बी 2 सो देयरफॉर यार पर আমি কি করিম 3 স্কয়ার এন্ড 3 স্কয়ার কি So अपना last digit will be 9 मान last rightmost non-zero digit will be 9 समझे लॉजिक ठीक ये वाला क्लास इधर पे मतलब ये वाला पार्ट इधर आपका खत्म होता है थैंक यू सो मच